today we are going to start with vertical circle, and I have been telling you from lecture number 1 to lecture number 8 that this is the tough part of the chapter, right? Henceforth, at least up to May end, whatever chapters are going to go on, they are going to be really tough. Electrostatics, which is started, is tough. Newton's laws of motion is going to start after kinematics, tough. After this, I will start with either projectile motion or oscillation. Oscillation is part of this book. Projectile motion is part of kinematics. Tough. So please be very, very, very careful. Normally what we do is, by end of May or start of June, right, we normally finish tough chapters so that you get enough time to study them. Once you know electrostatics, then many things are common in magnetism. Only the constant of proportionality changes, otherwise formula wise they are similar. Even gravitation more or less similar, right? Because in electrostatics you talk about charges, whereas in gravitation you talk about masses, and in magnetism you talk about magnetic charges. In electrostatics you talk about plus Q and minus Q, whereas in magnetism you talk about north pole and south. North pole is a positive magnetic pole, south pole is a negative magnetic pole, right? So today, non-stop I am going to speak for about 50 to 60 minutes. After that I will tell you what all pages we have done. After that I will rub everything on the board, every damn thing on the board. I will give you some time to revise. And after that I will just draw one circle. And in that one circle, we are going to write approximately 30 things. And those 30 things means 30 MCQs. Means whatever I write in that diagram is MCQ. Right? Now what is the difference between horizontal circle and vertical circle? If, just hold your book please. If this is your bench, I am lifting the bench up little bit. So now, hold the book. This is your book, right? And if suppose this is the sphere and it is tied to a string, and if I move it on your book, can I say the sphere is equidistant from all the points of the book? If you think about center of mass of that sphere and if it is moving on the book, then can I say it is equidistant? इसका मतलब ये हुआ कि when it is performing horizontal circle, right, can I say potential energy is constant? Total energy is always constant as you know, and therefore kinetic energy by default becomes constant. मतलब ये UCM, अगर बेटा ये UCM है तो ये सिर्फ horizontal circle में हो सकता है. Vertical circle cannot be UCM. Try to understand why. अभी आपका reference book है, मतलब ये आपका bench है, और ये sphere को मैं ऐसे नहीं घुमा रहा हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे. Then can I say during one part of motion it is closest, and during one part of motion it is farthest. That means if I take the bench as the reference plane and if I move this like this, so it is something like you are not riding in a horizontal merry-go-round. No, you are riding in a vertical merry-go-round. So at one point of your time you are closest to the ground, and at one point of time you are farthest from the ground. So here your potential energy is minimum. Here your potential energy is maximum. That means potential energy is increasing from minimum to maximum, again decreasing from maximum to minimum, minimum to maximum, maximum to minimum. Can I say kinetic energy will be exactly ulta? Right? At the lowest point, potential energy is lowest. So kinetic energy is highest. And at the highest point, kinetic energy is lowest because potential energy becomes highest. So in vertical circle, most important is, this is not actually vertical circle. जब मैं horizontal circle की बात करता था तो भी मुझे डायग्राम तो ऐसे ही बनाना पड़ता था, because my plane of drawing is vertical plane. आप लोग जब ये डायग्राम बनाओगे अपनी बुक में बनाओगे, लेकिन मुझे तो बोर्ड पे ही बनाना था. तो जब मैं horizontal circle की बात करता था तभी मुझे यही बोलना पड़ता था. But now I am very very clear about this is vertical circle. How will I make you understand this? Mind you, this is called reference line with respect to which you are going to measure the height of the body. And this is called reference line with respect to which you are going to measure this is the height. This is the reference line with respect to which you are going to measure the height. Where is the body? And this is the reference line with respect to which you are going to measure the angle. What do I mean by this? Hold this. Okay. Now, if this body is performing vertical circle, right? When it was just at rest, was it here? और कोई भी पोजीशन पे ये रेस्ट पे नहीं हो सकता है. That means if the particle has not started moving
Apply common sense. If I shift it here and if I say statue be at rest, is it possible? No. ये रेस्ट पे सिर्फ यहीं पे हो सकता है. क्यों? mg is acting downwards, tension is acting upwards. mg is acting vertically downwards, tension is acting vertically upwards, and they balance out each other. But what about this position? mg is still acting vertically downwards, but tension is not acting upwards. No, tension is acting along the string. That means this tension and this mg cannot balance each other. अगर ये यहाँ पे है तो पूरी तरह गिरेगा. मतलब अगर ये इक्विलिब्रियम पे है, मतलब इफ इट इज एट रेस्ट, बिफोर यू स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंट, इफ इट इज एट रेस्ट, इट इज एट रेस्ट हियर ओनली. सॉरी. नाउ दिस इज कॉल्ड रेफरेंस लाइन. दिस वन, दिस ग्रीन वन, विथ रिस्पेक्ट टू विच यू आर गोइंग टू मेजर द एंगल. राइट? मतलब ये एंगल कितना हुआ? 0. ये कितना हुआ? 90. ये now very important. ये very good, not 270. Try to understand why. अगर मैं इसको क्लॉकवाइज मूवमेंट बोलूं तो इसी को आप लोग एंटी क्लॉकवाइज बोलोगे, क्योंकि आप लोग ये साइड पे हो. चेक करो, आपको ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है कि नहीं? मुझे ये क्लॉकवाइज दिख रहा है. तो मैं बोल रहा हूं मैं 0 से 90 जा रहा हूं. आप लोग बोल रहे हो यस सर, यू आर गोइंग फ्रॉम 0 to 90. अब मैं बोल रहा हूं मैं 0 to 90 क्लॉकवाइज जा रहा हूं. आप लोग बोल रहे हो नो सर, यू आर गोइंग फ्रॉम 0 to 90 एंटी क्लॉकवाइज. योर पॉइंट ऑफ व्यू यू आर राइट, बट माई पॉइंट ऑफ व्यू आई एम ऑल्सो राइट. तो ये 0 to 90 हुआ मेरे लिए क्लॉकवाइज, आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज. ये 0 to 90 हुआ मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज, आपके लिए क्लॉकवाइज. अभी कॉमन सेंस अप्लाई करो. कैन आई से दिस इज द लोएस्ट पॉइंट एट विच द स्फीयर इज, एंड दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट. स्फीयर इसके ऊपर नहीं हो सकता और इसके नीचे नहीं हो सकता. यस और नो? यस और नो. मतलब ये मेरा रेंज हो गया, मिनिमम टू मैक्सिमम हाइट वाइज. तो यही मेरा एंगल वाइज भी रेंज है. 0, 90, 180, 90, 0, 0, acute, 90, obtuse, 180, obtuse, 90, acute, 0. तो बेटा एंगल का रेंज कितना हुआ? 0 to 180. थैंक यू. एंगल का रेंज कितना हुआ? 0 to 180. हाइट का रेंज कितना हुआ? सोच के बताओ. 0 to 2R. वेरी गुड. मतलब मैं एकदम स्टार्टिंग वाला पोजीशन लेता हूं तो बॉडी सिर्फ और सिर्फ इधर रेस्ट पे हो सकता है. सोचो, जब मैंने एक्सपेरिमेंट शुरू नहीं किया है, एक बार मेरा एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया ना, अब जब ये बॉडी इधर से पास होगा, इट विल बी हैविंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. थिंक ऑन दिस, बिकॉज यहां पे इसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है. यस और नो? सो व्हाट इज दिस ग्रीन लाइन? दिस ग्रीन लाइन इज द रेफरेंस लाइन with respect to which what is to be measured? Theta. Theta is measured. Right? Check करो बेटा. जब पार्टिकल इधर है थीटा कितना है? ओके. पार्टिकल इधर आया तो थीटा कितना होगा? पार्टिकल इधर आया तो थीटा कितना होगा? पार्टिकल इधर आया तो थीटा कितना होगा? अब क्यू. पार्टिकल इधर आया तो थीटा कितना होगा? Are you measuring all these angles with respect to this green line? Yes. Okay, what is this red line? This is also the reference line with respect to which, yes, very good, with respect to which you are going to measure the height. Height is measured. With respect to which height is measured. Yes or no? So when the body is here, what is the height? 0. Very good. Because the distance is to be measured from the reference line, and it should be the distance of center of mass. ये सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास है. तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दिस लाइन? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दिस लाइन? वेरी गुड. व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट? राइट? दिस इज कॉल्ड लोएस्ट पोजीशन. दिस इज कॉल्ड हाईएस्ट पोजीशन. दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल पोजीशन, एंड दिस इज कॉल्ड एनी पोजीशन. हाईएस्ट एक ही होता है, यूनिक. लोएस्ट एक ही होता है, यूनिक. हॉरिजॉन्टल 2 होते हैं, क्योंकि ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है. तो यूनिक तो नहीं है, लेकिन हम लोग उसको स्पेशल कंडीशन बोल सकते हैं. डी
infinitely many positions because कोई student D इधर ले सकता है, कोई इधर ले सकता है, कोई इधर ले सकता है. How many points are possible on the circle? Infinitely many. That means lowest is unique, highest is unique. So they are called spatial positions. And first you have to talk about spatial positions because then only you will be able to derive the equation. Please let me know. यहाँ तक diagram समझा? Now I will draw the vectors, force vectors. Most important is I have been telling you this again and again. The diagrams, vector diagram. So at point A, can I say weight is acting vertically downwards, weight is acting vertically downwards, weight is acting vertically downwards, weight is acting vertically downwards. Particle किधर भी हो, how does the weight act? Right. So do you agree with me? This black vector is mg. This black vector is mg. This black vector is mg. And this black vector is mg. दूसरा force is tension because we have a string available. How does the tension act? Along the string. Vertically upwards is a wrong word. Who said vertically upwards? It's a wrong word. I'll tell you why. बेटा अगर ये पोजीशन को मैं ज्वाइन करूंगा तो टेंशन ये डायरेक्शन में एक्ट करता है ना, तो ये वर्टिकली अपवर्ड्स किधर हुआ? इधर ये डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इधर ये डायरेक्शन में एक्ट करेगा. Do you agree with me? So don't say vertically upwards. You have to say along the string. You have to say starting from the mass and along the string. Starting from the mass and along the string. ये बेटा along the string नहीं हुआ, ये along the string हुआ. Who is the string? Who is the string? Can I say OA is the string? OC is the string. OB is the string. OD is the string. So is it acting along the string? Right? Along the string and it is starting from the mass. ये समझा? अब इसको मैं क्या बोलूंगा, ध्यान से सुनो बेटा. यहां पे आएगा टेंशन एट बी, बराबर. आप लोग पहले सिर्फ ब्लैक वेक्टर्स को देखो. ब्लैक वेक्टर क्या था? वेट, बराबर. अब आप रेड वेक्टर्स को देखो. रेड वेक्टर क्या है? टेंशन. हाउ इज वेट एक्टिंग? ऑलवेज. हाउ इज टेंशन एक्टिंग? ऑलवेज, बराबर. आपको 4 ब्लैक और 4 रेड वेक्टर समझा? This is tension at point B. This is tension at point A. This is tension at point D. And this is tension at point C. Do you agree with me, students? This angle is theta. मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन कौन सा होने वाला है? सबसे इंपॉर्टेंट एट द एंड ऑफ द आर्टिकल D. Because D is any position. मुझे कोई भी पोजीशन का आंसर पता होना चाहिए, right? D is going to be the general position. Now very very important. Suppose the particle is performing circular motion, vertical circle along anti-clockwise sense. Anti-clockwise sense होगा तो ये थीटा होगा. Yes or no? You know that it is performing circle. Guarantee है. इसका मतलब you know that centripetal force is required. Compulsory condition. So you also know that centripetal force is not coming from outside anywhere. It is part of the system. How is centripetal force going to act? How is centripetal force going to act? If the particle is at A, it will act in this direction. If the particle is at D, it will act in this direction. If the particle is at C, it will act in this direction. If the particle is at B, it will act in this direction. You know that green vector is compulsory. And you also know that green vector is not coming from outside anywhere. System में कोई है जो centripetal force का role play करता है. Example horizontal circle. Example planets revolving on the star. Who is playing the role of centripetal? Gravity. Electron revolving on the nucleus. Very good. Body tied to a string and performing horizontal circle. Vehicle going on a curved road. मतलब centripetal force बाहर से कहीं से नहीं है. अभी बेटा इसमें सबसे पहले आपको स्पेशल पोजीशन सॉल्व करना पड़ेगा. रिजल्ट वो यूनिक है. कौन से पोजीशंस यूनिक है? A and B. तो फर्स्ट आई विल गो फॉर एट हाईएस्ट पोजीशन. I will go for highest position. At highest position B, what happens that I want to know. At highest position B, what happens I want to know this. Let us call this as case 1. सोच के बताओ बेटा. At position B, how many force vectors do you see right now? 2. वो दोनों मिलके तीसरा प्रोवाइड करने वाले हैं.
सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर से कहीं से नहीं आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स सिस्टम में ही कोई है जो प्रोवाइड करता है। ये ग्रीन वेक्टर रिजल्ट ऑफ ब्लैक एंड रेड होने वाला है। ये जो ग्रीन वेक्टर है ना, दैट इज गोइंग टू बी द रिजल्ट ऑफ ब्लैक एंड रेड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाउ मेनी वेक्टर्स डू यू सी एट ऑल पॉइंट्स A, B, C, D? 2. The black one is weight and the red one is tension. आप लोग point B पे हो. You will add these vectors, you will subtract these vectors. Very good. So can I say tension at point B plus weight, which is mg, together they will play the role of centripetal force. सोचो बेटा. Right? That means red plus black is green. समझा? Red plus black is green. अभी मुझे ढूंढना है टेंशन. Reason, when I am moving this train, I should always be careful कि स्पीड इतना ज्यादा नहीं हो जाए कि टेंशन बहुत ज्यादा हो जाए और स्ट्रिंग टूट जाए. मुझे दो चीजें हमेशा ऑब्जर्व करनी है. ये बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्ट्रिंग टूटेगा, और ये बहुत स्लो भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये वर्टिकल सर्कल परफॉर्म ही नहीं करेगा. चेक करो, ये स्लो है, ये स्लो है. अभी मैंने एनर्जी देना बंद कर दिया. It falls down. That is called slack. If the string is absolutely straight, it is called taut. If the string is absolutely straight, it is called taut. Right? Absolutely straight. थोड़ा भी kink भी नहीं होना चाहिए उसमें. It is absolutely straight string. Right? And if it is slackened, इसका मतलब not straight. That means the body will not be able to perform vertical circle. ये words समझा अच्छे से? Slackened, taut, straight, right? मतलब बहुत ज़्यादा fast भी नहीं जा सकते हम लोग. Otherwise the string will break. Why? Because you have crossed the breaking strength of the string. और बहुत ज़्यादा slow भी नहीं जाना चाहिए. यहाँ तक समझा सबको? So how will I write this? Tension at point B plus mg is equal to mvb square upon r. सोचो बेटा. Is equal to mvb square upon r, and therefore what is the formula for tension? It is mvb square upon r minus mg, right? This is called equation of tension at highest point, and we cannot solve this. Reason, there are two unknowns. Tension तो unknown है ही, velocity भी तो unknown है. अच्छा, velocity क्यों unknown है? Because vertical circle is never UCM. Why vertical circle is never UCM? At the bottom the particle is fastest, and at the top the particle is slowest. That means in between the velocity keeps changing. So vertical circular motion is never UCM. Vertical circle can never be UCM because velocity keeps changing. अब इसको मैं आगे सॉल्व नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास दो अननोन्स हैं. टेंशन भी नहीं पता है मुझे और वेलोसिटी भी नहीं पता है. Are you getting this? I am going to prepare one chart over here, which is called all-in-one chart. And I am going to incorporate 28 things in this. 28. Right? Now, what are those 28 things? What are those 28 things? First, I will talk about angle. Then I will talk about height. Then I will talk about speed. Then I will talk about tension. Then I will talk about kinetic energy. Then I will talk about potential energy. And then I will talk about total energy. Check. I counted 7 things. Angle, height, speed, kinetic energy, potential energy, total energy, and tension. 7 things at 4 different positions. 7 things at 4 different positions. I will talk about position A. Then I will move to C. Then I will move to B, and then I will be at D. A is the lowest point, C is the horizontal point, B is the highest point, and D is any point. I am going to talk about 7 things: angle, height, speed, tension, kinetic energy, potential energy, and total energy. So at the end of this article, we will call this as all-in-one memory chart. मतलब अगर आपको ये चार्ट मालूम है तो आपको ऑलमोस्ट पूरा बोर्ड वर्क मालूम. आपको सिर्फ ये चार्ट मालूम है मतलब आपको पूरा बोर्ड वर्क मालूम. शुरू करो. राइट नाउ आई वांट टू फाइंड आउट 7 थिंग्स.
1 angle which is theta, next height which is h, next speed which is v, next tension which is t, next kinetic energy, next potential energy, and next total energy. Angle means theta, height means h, speed means v, t means tension, kinetic energy means ek, potential energy means ep, total energy means et. Right? अभी बेटा पहला कॉलम आप आराम से खत्म कर सकते हो, वेरी इजी. What is the angle when the particle is at A? 0. What is the angle when the particle is at C? 90. What is the angle when the particle is at B? 180. What is the angle when the particle is at D? Can I say it is some angle between 0 and 180? सोचो. Because minimum 0 होगा और maximum 180 होगा. Do you agree with me? Height also is easy. The second column also is easy. Come on. Height. यहाँ पे 0, यहाँ पे अच्छा, can I say R as L throughout? Can I say R as L throughout? जहाँ पे भी मैं चाहूँ. Radius of the circle is equal to the length of the string. Because string को टाउट ही रहना है, second allowed ही नहीं है, नहीं तो आप उसको radius बोल ही नहीं सकते. So wherever I write R, can I write it as L also if I want? Because ये मैं ले रहा हूँ. Before starting with the experiment, ये मैं ले रहा हूँ. So on a meter scale I can put it and I can find out what is the length of the string, and therefore I can say okay, the same is the radius of the circle. Yes or no? Yes. So R is equal to L. चलो बेटा, fill in the blanks. Over here R is L. What happens at B? 2R या तो 2L. And what happens here? L times 1 minus cos theta. L times 1 minus cos theta is H. Now this is little tricky. Let me prove it. आपको बेटा हाइट कहां से मेजर करना होता है हमेशा? रेड लाइन से. आप किधर हो? डी पे हो, डी पे, बराबर ना? आप डी पे हो, तो हाइट क्या हुआ? इज इट दिस? इज इट दिस? सोचो. इज इट दिस? इट इज डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन. इज इट हाइट? अब ध्यान से सोच के बताओ, ये क्या है? आर या तो उसमें से बेटा ये क्या है? इज इट एल कॉस थीटा? सोचो, मैं ये लेंथ की बात कर रहा हूं, ये समझा कि वापस बोलिए कि हाईलाइट करके बताओ. समझा? ये थीटा का बाजू वाला साइड. लेट मी गिव सम नेम टू दिस पॉइंट टेम्पररी. लेट मी कॉल दिस एज पॉइंट E. What is OE? Is it OA minus EA? Okay, what is OA? L. And what is EO? So is it L minus L cos theta? चेक करो बेटा, L कॉमन हुआ, 1 minus cos theta. अब आपको ये फॉर्मूला का करेक्टनेस चेक करना है. हाँ, आपको ये फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं ये चेक करना है. आप लोएस्ट पॉइंट पे हो. लोएस्ट पॉइंट पे थीटा क्या होगा? What is cos 0? What is 1 minus 1? 0. What is L into 0? 0. बराबर? अब आप पॉइंट B पे हो, B पे. आप B पे हो. What is theta? Very good. What is cos 180? What is 1 minus minus 1? 2. आ गया आंसर 2L. अब आप C पे हो. थीटा cos 90. 1 minus 0. 1 Elsa. आ गया बेटा. So what is the formula of L? H. L times 1 minus cos theta. क्यों मालूम है? अगर आपको H का फॉर्मूला मिल गया ना, बाय डिफॉल्ट आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया. सोचिए, what is potential energy? mgh. So what is potential energy in general anyway? mgl 1 minus cos theta. अब आपको ये चेक करना है कि आप राइट हो कि रॉन्ग हो. बराबर? आप राइट हो कि रॉन्ग हो, आपको चेक करना है. सो 1 by 1 ये मैंने इधर पोटेंशियल एनर्जी का पहले फॉर्मूला लिखा mgh. पोटेंशियल एनर्जी का पहले मैंने फॉर्मूला लिखा mgh. राइट? अब मुझे यहां से h मालूम है. राइट? h इज दिस. So is it
MGL 1 minus cos theta. चलो बेटा आप लोएस्ट पॉइंट पे हो. थीटा cos 0 1 minus 1 0 into everything. अभी मैं दूसरे स्टाइल से करता हूँ. Potential energy MGH. What is H here? It is mg into 0. अब आप हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे हो. थीटा cos 90 1 minus 0. Your answer is mgl. मतलब हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे r is equal to l is equal to h भी हुआ. सोचो खाली हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे और किधर भी नहीं. अब आप हाईएस्ट पॉइंट पे हो. हाईएस्ट पॉइंट थीटा cos 180 1 minus minus 1. Answer is 2l. Are you convinced? तो सोचो बेटा मैं 28 चीजें लिखने वाला था. 12 चीजें तो अपनी अब भी हो गई. मैं 28 चीजें लिखने वाला था. 4 7 उसमें से 12 तो अब भी हो गई ना. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सबसे बेटा मेन पार्ट ये दो है. स्पीड and tension. I'll tell you why. Potential energy is easy. Total energy you know that is always constant. तो ये मेरा सब पोजीशन पे एक ही आंसर आएगा. So total energy minus potential energy by default will give me kinetic energy. Total energy minus potential energy by default will give me kinetic energy. अब यहाँ पे मैं अटक गया. रीजन मेरे पास दो अननोन्स है. मुझे ना T भी पता है, मुझे ना V भी पता है. अटक गया मैं. So I cannot solve this. Let me call this equation 1. Was this the unique position? What is the next unique position? A. So I will take that position now. At lowest point B. At lowest point A. Sorry. At lowest point A. चलो बेटा कोशिश करो. आप लोग इक्वेशन सेट कर सकते हो या इधर? A पे देखो A पे. What will you do with tension and mg? Add की subtract? आपको दो ही फोर्सेस देखने हैं. कौन से वाले? Black and red. Black one is weight. Red one is tension. आपको दो ही देखने हैं. तो यहाँ पे आपने उनको ऐड किया था. What about the status of red and black? You will subtract. सोच के बोलो. TA minus mg की mg. TA minus mg. Brilliant. Because you need centrifugal force. And centrifugal force should act in this direction. ये ग्रीन वाला एरो देखो. ये ग्रीन आपका रिजल्टेंट है. तो रिजल्टेंट कौन से डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं? अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर. तो टेंशन और mg में से कौन पावरफुल होना चाहिए? वेरी गुड. सो व्हाट विल यू राइट ओवर हियर? TA minus mg is equal to FCP and therefore TA minus mg is equal to mVA square upon r. And therefore tension at point A is mVA square upon r plus mg. Are you observing something? Are you observing something? लिखने का स्टाइल से देखो. टेंशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, वेट. टेंशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, वेट. But listen to my conclusion. Tension at the highest point is lowest. And tension at the lowest point is highest. Tension at the highest point is lowest. And tension at the lowest point is highest. Now think about some hypothetical situation. इधर आ जाओ. हम लोग 10th फ्लोर पे. 10th फ्लोर पे. I am tying a rope around his neck. And I am going on 11th floor. That means he is at the lowest point. Right? Check the language. I feel tension and he is tensed. ये फिजिक्स का स्टेटमेंट हुआ और ये इंग्लिश का स्टेटमेंट हुआ. आई एम होल्डिंग द रोप. ही इज द पार्टिकल एट द एंड ऑफ द रोप. लोएस्ट पॉइंट पे कि हाईएस्ट पॉइंट पे? तो मुझे हाईएस्ट टेंशन फील होगा. अभी ये बंदा इधर ही है. मैं 11th फ्लोर के बदले 9th फ्लोर पे गया और मैं रोप पकड़ के खड़ा हूं. तो ही इज एट द हाईएस्ट पॉइंट. Why will he feel tension? He is not a hanging body. सोचो ये 10th फ्लोर पे और मैं 11th फ्लोर पे रोप को पकड़ के खड़ा हूं. तो do I feel highest tension? And what is that? Right? अभी ये तो 10th फ्लोर पे ही है. मैं 11th से शिफ्ट होके 9th पे आया.
So why will he feel tension? Imagine there's a rope around his neck and I'm holding this like this. That means he's not tensed and I don't feel tension. Logic समझा? Sure. So what is the language? In vertical circle, highest point पे lowest tension is felt and lowest point पे highest tension. मैं वापिस इधर अटक गया क्योंकि वापिस इधर दो unknowns है. Yes or no? Tension and velocity. Now you may be wondering कि सर 1 के बाद सीधा 4, 2 और 3 किधर गया? ये दो मैं डिराइव करने वाला हूँ, 2 and 3. बाद में मैं इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ. Please let me know. Have you understood these two equations? Yes. Now the most important thing is I cannot solve them simultaneously. If I solve 2x minus 5y is equal to 7 and 3x plus 4y is equal to 12, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ क्योंकि इसमें दोनों में सेम दो वेरिएबल्स हैं. लेकिन अगर मैं इसको 3a प्लस 4 भी बोलूं तो कैसे सॉल्व कर सकता हूं? इधर बेटा चारों वेरिएबल्स अलग अलग है ना, tb, vb, ta, va. इसका मतलब मैं इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं कर सकता. किसी का है पूछने के लिए? समझा सबको? मतलब मैं इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं कर सकता. अभी ध्यान से सुनो, मेरा स्टेटमेंट क्या था. हाईएस्ट पॉइंट पे लोएस्ट टेंशन, लोएस्ट पॉइंट पे हाईएस्ट टेंशन. अभी लोएस्ट पॉइंट पे हाईएस्ट टेंशन ये कितना है मुझे मालूम नहीं है. रीजन दिस विल चेंज फ्रॉम स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग. मैंने ये थ्रेड यूज किया विच इज कॉटन. इधर मैं नाइलॉन फाइबर यूज कर सकता हूँ, फॉस्फर ब्रॉन्ज फाइबर यूज कर सकता हूँ, कॉपर वायर यूज कर सकता हूँ, केबल यूज कर सकता हूँ, रॉड यूज कर सकता हूँ, बड़ा सा केबल यूज कर सकता हूँ जो लिफ्ट में यूज होता है. आई डोंट नो व्हाट इज द ब्रेकिंग टेंशन, राइट. लेकिन लोएस्ट आंसर मुझे पता है. लोएस्ट 0 से कम नहीं हो सकता. टेंशन कैन नॉट बी नेगेटिव. सोचो हाईएस्ट टेंशन कितना है मुझे नहीं पता, राइट. लोएस्ट टेंशन 0 से नीचे नहीं हो सकता और ये हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं कर सकते ना इसको. दैट्स व्हाई वी हैव टू अज्यूम वन स्पेशल कंडीशन एंड दैट स्पेशल कंडीशन इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन. Only and only if this word is used, you can use this. In equilibrium condition, tension at the highest point B will be 0. सोचते हैं क्यों? ये बॉडी वर्टिकल सर्कल परफॉर्म कर रहा है, मैंने एनर्जी देना बंद किया. एक सिचुएशन आएगा जब ये बॉडी इधर से आगे नहीं जाएगा, गिरेगा. तो जब ये गिरेगा, what is the tension felt by me? What is the tension felt by me? Highest. What is the tension felt by me? Something. What is the tension felt by me? Yes or no? मतलब टेंशन 0 से कम नहीं हो सकता है. और वो भी कौन से पोजीशन पे 0 हो सकता है? हाईएस्ट पॉइंट. हाईएस्ट पॉइंट पे लोएस्ट टेंशन, लोएस्ट पॉइंट पे हाईएस्ट टेंशन. इट्स लाइक बोर्ड एग्जाम. बोर्ड एग्जाम में आपको 0 से कम मार्क्स नहीं मिल सकते बिकॉज़ देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. आप नाम लिख के आओ, हॉल टिकट नंबर लिखो, कुछ मत लिखो, एटीट्यूड बताओ अपना, पास करके बताओ. एग्जामिनर विल गिव यू 0. एग्जामिनर को बहुत गुस्सा आया तो भी माइनस नहीं दे सकता बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं उधर. सो व्हाट इज द लिस्ट स्कोर यू कैन गेट इन एनी एचएससी बोर्ड पेपर? 0. राइट. कैन आई से दैट इज दिस कंडीशन? अब बेटा मेरे पास 4 लोग थे, टीबी, वीबी, टीए, वीए. उसमें से एक मुझे मिल गया. लेकिन आप ये कब यूज कर सकते हो? Only and only when you use equilibrium condition, right? Now I know tension at point B is 0. Substitute that here. What will you get? What will you get? Can I say 0 is equal to mvb square upon r minus mg. That means mvb square upon r is equal to mg. You know what does this mean? Weight itself is playing the role of centripetal force. बॉडी का जो वेट था ना वो खुद पूरा का पूरा सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो गया, इसलिए ये बॉडी गिरता नहीं. बेस्ट एग्जांपल इन प्रैक्टिकल लाइफ, पायलट लूपिंग द लूप. फाइटर पायलट, व्हेन द पायलट इज लूपिंग द लूप, हाईएस्ट पॉइंट पे उसको ग्रेविटी की वजह से गिरना चाहिए, लेकिन वो क्यों नहीं गिरता है? पायलट का वेट खुद सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है. The best practical life example which you can try at home is this. Better give me this corner. यहाँ पे पानी है, you can see that. इधर एक स्ट्रिंग टाई करो. हाँ,
और बाद में इसको स्लो स्लो मूव करना शुरू करो, करेक्ट? तो पहले ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में जाएगा. नाउ द लॉजिक इज हेवी पार्टिकल्स गो इन द डायरेक्शन ऑफ CFF. इधर कौन है? इधर. वेरी गुड. ये कौन है? तो हाउ विल वाटर गो? टेंड टू गो अवे, राइट? मतलब यहाँ पे एयर होगा. अब आप इसकी स्पीड और बढ़ाओ सच दैट पहले आपने इसको ऐसे किया, पहले आपने इसको ऐसे किया, राइट? बाद में ये ऐसे गया. अब आप इसको ऐसे करो एंड प्लीज नोट ये कैप नहीं है, ये कैप नहीं है. मतलब ये वर्टिकल सर्कल में जा रहा है. पानी का एक भी ड्रॉप बाहर नहीं आएगा. रीजन, पानी ऊपर की साइड पे गया, CFF. तो CFF वेट को बैलेंस करेगा, मतलब वो पानी को नीचे गिरने नहीं देगा. सो देयर आर टू स्टेटमेंट्स. Either you can say weight of water itself is playing the role of CPF or weight is balanced by CFF. फिलहाल मैं इसको करके नहीं बता सकता बिकॉज मैं अगर इसको ऐसे करूंगा पानी बाहर आएगा. I need to give some minimum speed to that. Yes or no, right? तो बेटा ये वर्टिकल सर्कल में क्या होगा? ये ऊपर होगा पानी, एयर नीचे होगा, फिर भी पानी नीचे नहीं आएगा. क्यों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको पुश करेगा और ये इसको बाहर नहीं आने देगा. Are you getting this? So there are two statements. Either you can say centrifugal force balances weight of water, or you can say weight of water itself is playing the role of centrifugal force. Right? जिसकी वजह से वो गिरने वाला था, वो खुद उसको बचाता है. It is like snake bite का जो एंटीडोट होता है वो स्नेक पॉइजन में से बनता है, राइट? किंग कोबरा का जो पॉइजन होता है उसी को निकाल के उसी में से वैक्सीन बनाते हैं जो आपको उसमें से ठीक करता है. दैट इज एंटीडोट. Are you getting this? तो जिसकी वजह से वो बॉडी गिरने वाला था वही उसको बचाता है. Because that itself is now converted into CPF. या तो it is balanced by CFF. समझा बेटा? ध्यान से देखो इसको आप मैथमेटिकली कैसे बोलोगे? Weight provides centripetal force. क्या बोलोगे? Weight provides centripetal force. और या तो फिर weight is balanced by centrifugal force. Because centripetal force और centrifugal force formula wise are same. Centripetal force is radially inwards. Centrifugal force is radially outwards. ये इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुआ. आगे सुनो, मुझे वेलोसिटी ढूंढना है. तो ये m कट हुआ. So can I say velocity is under root rg? Now बेटा ध्यान से देखो इसको. Is it something dimensionless into rg? वेलोसिटी लिखने का ये स्टाइल था, याद करो. अंडर रूट आरजी इनटू समथिंग व्हिच इज डायमेंशनलेस. आगे सुनो सबसे इंपॉर्टेंट. हम लोग जब बैंक रोड की बात कर रहे थे, अनबैंक रोड की बात कर रहे थे, बैंक रोड विद फ्रिक्शन की बात कर रहे थे, हम लोग वो वेलोसिटी को मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी बोलते थे. मतलब उसके बियॉन्ड नहीं जाने का. यहाँ पे इसके बिलो नहीं जाने का. सोचो क्यों? अगर इसके बिलो गया मैं तो मैंने एनर्जी देना बंद कर दिया, the body will fall. तो यहाँ पे लिखने का greater than or equal to. मतलब ये पूरे आर्टिकल में आप जो वेलोसिटीज ढूंढ रहे हो, ये पूरे आर्टिकल में आप जो वेलोसिटीज ढूंढ रहे हो वो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड है. समझा कि बाउंसर गया? समझा कि वापिस बोलू बेटा? रूट आरजी या तो उससे ज्यादा होना चाहिए. रूट 1.5 आरजी चलेगा, रूट 2 आरजी चलेगा, रूट 3 आरजी चलेगा, लेकिन रूट 0.75 आरजी नहीं चलेगा. क्यों? एनर्जी इज नॉट इनफ. अच्छा, वो जो हम लोग बढ़ा रहे हैं ना, रूट 2 आरजी, रूट 3 आरजी, रूट 4 आरजी, वो कब तक चलेगा? जब तक स्ट्रिंग टूटता नहीं. स्ट्रिंग टूट गया फिर तो वो भी वेलोसिटी बेकार ही है ना. मतलब आपने हद से ज्यादा वेलोसिटी दे दी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कौन सा वेलोसिटी है? मिनिमम रिक्वायरमेंट कि मैक्सिमम लिमिट? वर्टिकल सर्कल के पूरे आर्टिकल में आप जो वेलोसिटीज ढूंढ रहे हो वो मिनिमम रिक्वायरमेंट. बैंक रोड में आप जो वेलोसिटी ढूंढते थे वो मैक्सिमम था. रूट म्यू आरजी से बियॉन्ड नहीं जाने का, अदरवाइज यू आर नॉट सेफ. रूट आरजी tan थीटा के बियॉन्ड नहीं जाने का, अदरवाइज यू आर नॉट सेफ. रूट आरजी ब्रैकेट म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा के बियॉन्ड नहीं जाने का. तो अब तक जितने भी आर्टिकल्स किए हम लोगों ने, देयर इट इज मैक्सिमम स्पीड लिमिट, यू शुड नॉट गो बियॉन्ड. हियर इट इज मिनिमम रिक्वायरमेंट, इसके नीचे नहीं जाने. ये लेस देन हुआ ना बेटा, लेस देन, it will not perform vertical circle. Did I have two unknowns? Did I have two unknowns? Could I solve them simultaneously? No.
Did I take help of special condition? What is that? Highest point पे lowest answer and tension cannot be lower than 0. So in equilibrium condition, what is the tension? 0. तो मुझे दो में से एक अननोन मिला, सब्स्टिट्यूट किया दूसरा अननोन, राइट? अब यहाँ पे तो मैं पूरी तरह अटक गया, पूरी तरह, क्योंकि यहाँ पे तो मैं दो में से एक जज कर सकता था क्योंकि ये 0 था। यहाँ पे मैं क्या जज करूं? यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ लोएस्ट पॉइंट पे हाईएस्ट टेंशन। हाईएस्ट मतलब कितना? इन्फिनिटी लूं क्या मैं? अगर ये इन्फिनिटी लूंगा मतलब ये स्ट्रिंग कभी टूटेगा ही नहीं लाइफ में, कितना भी फास्ट मूव करो। इज इट पॉसिबल? नो। लिफ्ट का केबल भी टूट सकता है। लिफ्ट के केबल की भी एक ब्रेकिंग लिमिट होती है, उसके बियॉन्ड अगर आपने फोर्स अप्लाई कर दिया तो लिफ्ट का केबल भी टूट सकता है। तो इसकी तो कोई औकात ही नहीं है फिर तो। इसका मतलब जैसे ओवर हियर आई कुड से हाईएस्ट पॉइंट पे लोएस्ट टेंशन एंड इज 0, मैं लोएस्ट पॉइंट पे हाईएस्ट टेंशन एंड इज इंफिनिटी नहीं बोल सकता, बिकॉज इंफिनिटी मींस नॉट डिफाइंड। एकदम बुरी तरह अटक गया। फिजिक्स में कभी भी बुरी तरह अटकते हो, ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट विल ऑलवेज गेट यू आउट, इट विल ऑलवेज गेट यू आउट। और एल्स यू कैन टेक हेल्प ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। Difference of kinetic energy is equal to work, या तो difference of potential energy is equal to work. Check please, check. Can I say according to law of conservation of mechanical energy, मैंने खाली energy भी नहीं बोला है, mechanical energy. What do I mean by that? Kinetic energy at point A plus potential energy at point A should be equal to kinetic energy at point B plus potential energy at point B. And now it is very easy for you. Start solving. What is kinetic energy at A? Half mva square. What is potential energy at A? 0. What is kinetic energy at B? Half m. किसी ने 0 बोला, रॉन्ग है। सुनो बेटा, क्यों? आपने शायद ये सोच के बोला कि सर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 था इसलिए काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट था, इसलिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 होना चाहिए और पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होता है, मिनिमम होता है, क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी 0 हुआ तो हाफ mv स्क्वायर इज 0, उसका स्पीड 0 है, तो उसको मूव कौन करवा रहा है? तो यू शुड नॉट से काइनेटिक एनर्जी इज 0, यू शुड से काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम। स्पेशल कंडीशन पूछा तो भी 0 नहीं बोल सकते। यस और नो? ओके, प्लस व्हाट विल कम? सोच के बोलो बेटा। mg बोलो 2l, वेरी गुड। या तो कैन आई से 2r? ओके, कैन आई राइट वन इक्वेशन डायरेक्टली? सोचो बेटा, समझा आपको कि थोड़ा डिटेल लिख के बताऊं। va स्क्वायर इज vb स्क्वायर प्लस 4rg। सोचो, चलेगा डायरेक्ट लिखा तो? हाफ एम va स्क्वायर इज हाफ एम vb स्क्वायर प्लस 2mgr, m का 2 थ्रू आउट, तो va स्क्वायर अपॉन 2 is vb स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2gr, दैट मींस va स्क्वायर इज vb स्क्वायर प्लस 4gr, बराबर? दो अननोन्स है, लेकिन एक मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, एक मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, तो am I successful in getting va now? So what is va square? va square is equal to rg plus 4rg, and therefore what is va square? 5rg. Can I say va is root of 5rg? सोच के बोलो बेटा, इक्वल टू लिखूं, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखूं कि लेस देन इक्वल टू? ग्रेटर देन मतलब इससे ज्यादा होगा चलेगा? रूट 5.5 आरजी चलेगा क्या? हाँ, रूट 6 आरजी चलेगा क्या? रूट 4.5 आरजी चलेगा क्या? क्योंकि बेटा अगर यहाँ पे रूट 4.5 आरजी हो गया मतलब यहाँ पे जाते जाते वो रूट आरजी से कम हो गया, so the string will be selected. That's why you have to be careful. In this article, the velocities which we are finding out are minimum requirements. मतलब उससे ज्यादा होगा तो चलेगा, कम होगा तो नहीं चलेगा। Are you getting my point? Sure. ये बेटा next unknown मिला मुझे. Let us call this as equation 5. Let us call this as equation 5. And this equation 5 you can substitute here to get answer of tension. Yes or no? जैसे मुझे ये मिला था ना टेंशन, मैंने सब्स्टिट्यूट किया था तो मुझे वेलोसिटी मिला था।
अभी मुझे वेलोसिटी मिल रहा है, सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे टेंशन मिलेगा। तो सब्स्टिट्यूटिंग 5 in 4, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 5 in equation 4, what will you get? TA is equal to m upon r. What is VA square? 5rg, बराबर ना, प्लस mg, r cancel, and therefore what is tension at point A? बोलो बेटा, ये लिखूं कि ग्रेटर देन इक्वल टू लिखूं कि लेस देन इक्वल टू? ग्रेटर देन। टेंशन ज्यादा होगा तो चलेगा, कम होगा तो चलेगा, बराबर। मेरे पास दो स्पेशल पोजीशंस आ गए। पोजीशन C is very simple. Can you tell me why? C is the exact average of A and B. सोचो, आप इधर से इधर गए तो ये पोजीशन एग्जैक्ट मिडवे, एंगल वाइज देखो, रेडियस वाइज देखो, पोटेंशियल एनर्जी वाइज देखो। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी हियर? 0. व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी हियर? 2 mgr, नो? व्हाट इज थिंग शुड बी पोटेंशियल एनर्जी हियर? mgr है कि नहीं एवरेज? अभी एंगल देखो, व्हाट इज एंगल? 0. व्हाट इज एंगल? 180. आ गया एवरेज। व्हाट इज हाइट? 0. व्हाट इज हाइट? आ गया एवरेज। तो बेटा पोजीशन C is very simple. Case 1 was a special position. Case 2 was a special position. Case 3 very simple. At horizontal position C, what do you think should be the answers? Any guesses? At horizontal position C, can anybody give me the answer of tension? कैसा है टेंशन एट A प्लस टेंशन एट B का एवरेज आएगा इधर। वेरी गुड, वेरी गुड। Any guess? What will be velocity? पहले तो वेलोसिटी का फॉर्मेट क्या होना चाहिए? अंडर रूट आर जी इंटू समझिए। हिंट देता हूं, इधर रूट 5 आर जी था, इधर रूट 1 आर जी, रूट 3 आर जी, राइट। अभी इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूं। 0 और 6 का एवरेज 3 हो सकता है, राइट, लेकिन रूट 1 और रूट 5 का एवरेज रूट 3 होता है, ये किसने बोल दिया? तो इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपकी गैस वर्क को लिया कि चलो ठीक है, आप लोग बोलो रूट 3 आर जी, मैंने बोला, लेकिन मैंने यहाँ पे ये भी लिखा है हाँ, तो ये मैं प्रूफ करूँ कि हाँ आंसर यही है, लेकिन ये मैं प्रूफ करूँ। अब सबसे कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन कौन सा? डी। हाँ, ध्यान से सुनो बेटा, ये वेक्टर को मैंने एक्सटेंड किया रेड वाले को, बराबर। कॉमन सेंस अप्लाई करो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हुआ, ये mg है, इसका मतलब ये mg cos थीटा हुआ और ये mg sin थीटा हुआ, ये mg cos थीटा हुआ और ये mg sin थीटा हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये बॉब वापिस लाना है, किसको सर्कल परफॉर्म करवाना है? वेरी गुड, आपको ये बॉब वापिस लाना है। यू वांट टू ट्रीट दिस एज सिंपल पेंडुलम, यू वांट टू ट्रीट दिस एज वर्टिकल सर्कल। सो mg sin theta is not important because you don't want the bob to come back, but mg cos theta is very important. Why? Because it is on this line, and you know that centripetal force should always act along the radius towards the center. तो बेटा पहले तो सोचो पॉइंट डी पे आपके पास कौन से वेक्टर्स हैं which are on radial line, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कंपल्सरी। रेडियल लाइन पे कौन से फोर्स हैं? वन इज टेंशन, अनदर इज mg cos थीटा। ऐड की सब्ट्रैक्ट, वेरी गुड। TD माइनस mg cos थीटा कि mg cos थीटा माइनस TD? सुपर वैल्यू, सुपर वैल्यू। क्या लिखोगे बेटा? फोर्थ पॉइंट क्या लिखोगे? एट एनी पोजीशन, एट एनी पोजीशन डी। चलो बेटा इक्वेशन बोलो, इक्वेशन बोलो। टेंशन माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mvd स्क्वायर अपॉन r। मैंने इधर टेंशन का इक्वेशन लिखा था, मैंने इधर टेंशन का इक्वेशन लिखा था, मैंने इधर टेंशन का इक्वेशन लिखा है, तो मुझे इधर भी टेंशन का ही इक्वेशन चाहिए। तो व्हाट इज टेंशन इन जनरल? इज इट mvd स्क्वायर अपॉन r प्लस
mg cos theta. This is the superhero of the story. This is the super duper hero of the story. आपके लिए चारों पोजीशन में से जनरल पोजीशन कौन सा था? अभी देखते हैं हमारा इक्वेशन राइट है कि रॉन्ग। सोचते हैं वन बाय वन। सपोज पॉइंट डी becomes point A. Suppose point D becomes point B, and suppose point D becomes point C. When D becomes A, what can you say about theta? Very good. When D becomes B, 180, and when D becomes C, बराबर? अभी आपको जिधर जिधर D दिखता है ना, उधर उधर A लिखो। जिधर जिधर D दिखता है, चलो इक्वेशन बोलो। T is mv square upon r plus mg cos 0. Cos 0 is 1. तो बेटा इक्वेशन क्या आया? T is mv square upon r plus mg. Oh lovely. बराबर? अब आप लोग B पे हो, B पे थीटा 180. तो what can you say about tension at B? What can you say about tension at B? Is it mvb square upon r? Can I say lovely again? What can I say about C? Can I say tension at C is mvc square upon r? इसका मतलब C पे mg ने कंट्रीब्यूट ही नहीं किया और कर भी नहीं सकता था। यू नो व्हाई? लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस आर्टिकल। होल्ड दिस, इधर पकड़ और इधर पकड़। बेटा ये C है ये, और ये C डैश है। पूरे वर्टिकल सर्कल में ये दो सिर्फ ऐसे हैं कि जो जिधर थे उधर ही रहते हैं। ये वर्टिकल सर्कल को मैंने हॉरिजॉन्टल सर्कल में कन्वर्ट किया, तो ये आपकी तरफ आया, ये पॉइंट, ये मेरी तरफ आया, लेकिन ये जिधर थे उधर ही। अब याद करो हॉरिजॉन्टल सर्कल में हु प्रोवाइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? आगे C और C डैश, ये दो मात्र ऐसे पोजीशंस है कि जो वर्टिकल सर्कल में और हॉरिजॉन्टल सर्कल में कॉमन है। मतलब पॉइंट C पे वेट कंट्रीब्यूट ही नहीं करता, पॉइंट B पे वेट कंट्रीब्यूट करता है कि नहीं, पॉइंट A पे वेट कंट्रीब्यूट करता है कि नहीं, पॉइंट D पे भी वेट कंट्रीब्यूट करता है कि नहीं, C पे नहीं करता। इज दैट वेरी क्लियर? नाउ लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस। इधर हाउ था ना, नाउ चेक दिस। मैं इसके बारे में श्योर हूं, टेंशन एट पॉइंट C इज 3 mg। मैं इसके बारे में भी श्योर हूं, टेंशन एट पॉइंट C इज mvc स्क्वायर अपॉन r। इसका मतलब 3 mg is mvc square upon r. mm gone, vc square is 3 rg, and therefore how becomes wow. मैंने रूट ऑफ 5 और रूट ऑफ 1 का एवरेज रूट 3 एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन मैंने आपको बोला था कि आपको क्या लग रहा है ये आंसर क्या होना है। आप लोगों ने बोला सर रूट 3 rg होना चाहिए। I still did not accept it, but now I am proving it. लॉजिक समझा बेटा? एकदम श्योर? ओके, नाउ लेट अस कंप्लीट दिस टेबल। शुरू करें? चलो बेटा, स्पीड लोएस्ट पॉइंट पे क्या स्पीड है? ग्रेटर देन और इक्वल टू, चलो नेक्स्ट, ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ऑफ, नेक्स्ट नेक्स्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ऑफ GL, कर बोला LRG, NRG, शट अप, खाली ऑड नंबर्स आ रहे। इट इज रूट ऑफ GL ब्रैकेट 3 प्लस 2 cos थीटा। वाव, करके देखो। ये मैंने प्रूव नहीं किया है, उधर मत देखो, प्रूव बाकी है। इसको खाली करके देखो। आप लोएस्ट पॉइंट पे हो, मान लो आप लोएस्ट पॉइंट पे हो। व्हाट इज थीटा? व्हाट इज cos 0? 2 1 5, 2 1 plus 3
रूट ऑफ 5 आ गया। आप हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे हो, हॉरिजॉन्टल थीटा नाइन्टी कॉस 90 0 2 जीरो था 0 प्लस 3 आंसर रूट 3 आ गया। अब क्या हुआ? अच्छा ए लोएस्ट पॉइंट था, अरे बराबर है। इधर रूट ऑफ 5 आ गया, आई एम सो सॉरी, और इधर रूट ऑफ 1 आ गया, बराबर बराबर सॉरी। अब आप हाईएस्ट पॉइंट पे हो, थीटा 180 cos 180 2 into -1 3 minus 2 आ गया, बराबर। चलो बेटा टेंशन टेंशन लोएस्ट पॉइंट पे हाईएस्ट टेंशन, हाउ मच इज दैट? ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 mg, बराबर। नेक्स्ट वन ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 mg, नेक्स्ट वन इट इज 3 mg ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू। करके देखो, करके देखो। आप लोएस्ट पॉइंट पे हो, थीटा आप लोएस्ट पॉइंट पे हो, थीटा cos 0 1 प्लस 1 2 into 3 mg। आप हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे हो, थीटा 1 प्लस 0 3 mg। आप हाईएस्ट पॉइंट पे हो, थीटा cos 180, समझा? लेकिन बेटा इधर ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है, मतलब ये वैल्यू अगर 1 mg हुआ तो सोचो ये 4 mg होगा, ये 7 mg होगा। अगर ये 2 mg हुआ 5 8, ये 3 mg हुआ 6 9। अब मान लो 9 ब्रेकिंग टेंशन, 9 मतलब वहां पे स्ट्रिंग टूट गया, तो उसके आगे मैं नहीं जा सकता हूं। फिर मैं ये नहीं बोल सकता ये 10 mg है therefore ये 7 mg है therefore ये 4 mg था। अरे 9 mg पे स्ट्रिंग टूट गया, that means vertical circle is not happening now, the stone is flying off along the tangent। ये समझा अच्छे से बेटा? लेकिन ये आप सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम वर्ड यूज हुआ तो ही यूज कर सकते हो। अगर इक्विलिब्रियम वर्ड हुआ तो ही बोलो ये 0 आया। अगर इक्विलिब्रियम वर्ड नहीं होता तो आप इसको 0 नहीं बोल सकते थे, तो उसके लिए फिर अलग फॉर्मूला। मैं एकदम लास्ट में जो 2 फॉर्मूला लिखूंगा ना, एकदम लास्ट में, वो जनरल मोस्ट फॉर्मूला, और वो मुझे डिराइव करना पड़ेगा, मेरे पास इधर स्पेस नहीं होगा। तो ये पूरा आर्टिकल मैं पढ़ने का आपको टाइम दूंगा, रिवाइज इट एक्सट्रीमली वेल, मेमोराइज इट, फिर ये मैं रब करूंगा पूरा, फिर एक ही सर्कल बनाऊंगा, और ये एक सर्कल में मैं ये 28 चीजें लिखूंगा, और वो लिखने के बाद मैं बाकी की 2 जनरल चीजें भी लिखूंगा, राइट? लेट अस फर्स्ट कंप्लीट दिस टेबल। काइनेटिक एनर्जी, सोच के बताओ क्या है? कॉमन सेंस, उधर देखने की जरूरत ही नहीं है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब है हाफ mv स्क्वायर, बराबर। हाफ m इसका स्क्वायर, हाफ m इसका स्क्वायर, तो शुड इट बी 5/2 mrg। नेक्स्ट बोलो 3/2 mrg। नेक्स्ट बोलो 1/2 mrg। नेक्स्ट बोलो हाफ m स्क्वायर, मतलब हाफ m इसका स्क्वायर, gl ब्रैकेट 3 plus 2 cos theta। I hope I am not fast, not to worry। नेक्स्ट 10 मिनट के बाद में ना पूरा चार्ट में पूछूंगा, and I am sure आपको याद हो जाएगा। अभी का अभी वो टेक्निक दूंगा। अभी R को मैं L को R कर सकता हूँ, इसको R कर सकता हूँ, इसको R कर सकता हूँ, यस। Apply common sense, total energy will be same everywhere, so your answer will be 5/2 mrg। करके देखो, what is 5/2 plus 0? What is 3/2 plus 1? What is half plus 2? That means total energy is conserved and is same everywhere। इधर देखो, मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं बोला है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी।
एनर्जी बोला होता तो टोटल 5/2 mRT upon यस और नो. तो टोटल मेरे बोर्ड पे कितने एमसीक्यूज है? नॉट 28, 29, 30, 31. आगे सुनो, 7 और. As we move from bottom to top, in vertical circle, माइंड यू 3 चीजें बढ़ती है, 3 चीजें कम होती है और एक चीज सेम रहती है. What all things increase? Theta increases, height increases, potential energy increases. What all things decrease? Speed decreases, tension decreases, kinetic energy decreases. What remains constant? इसका मतलब ये हुआ कि ये 7 क्वेश्चन और हो गए. और अभी मैं पूरा बोलवर पूरा करूंगा और मैं यहाँ पे क्योंकि ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है, मैं 2 फॉर्मूला और डिराइव करूंगा. क्योंकि ये फॉर्मूले टेंशन के और स्पीड के दे आर वैलिड ओनली फॉर द वर्ड इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम नहीं हुआ तो क्या? जरूरी थोड़ी हर बार फोर्सेस बैलेंस हो. नहीं हुए तो क्या? इज दैट क्लियर? बोलवर्क समझा मेरा पूरा? सुपर श्योर, एकदम सुपर श्योर. वीडियो पॉज, स्टॉप मत करना प्लीज. ओके स्टूडेंट्स, आर यू डन विद पेज नंबर्स 14 एंड 15? चलो बेटा अभी बुक बंद एकदम. मेमोरी रिकॉल. And thereafter I will just draw one diagram, and in that one diagram I will write everything. What is being taught, I will write everything. First of all, a shortcut. Everybody here, ध्यान से, बुक्स एकदम बंद. वर्टिकल सर्कल घर पे भी ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो तुम लोग. थीटा 0, 0. Some acute angle, some obtuse angle. Once again. 0, 180, 0, 180, 90, 90, acute. Theta हो गया. Now height. 0, 2R, 0, 2R, R. Between 0 and R. Between R and 2R. So can I say in general between 0 and 2R? Height हो गया. Right? अभी velocity. Minimum root 5 R. Minimum. Root R. Can this be root 6 RG? Yes. Minimum है ना? Can this be root 4 RG? No. Very good. Can this be root 4 RG? Yes. Can this be root 2.5 RG? No. Can this be root 1.5 RG? Yes. Can this be root 0.5 RG? No. Once again, minimum root 5 RG. मतलब root 6 RG can do, root 7 RG can do, root 8 RG can do. ये कब तक चलेगा? जब तक स्ट्रिंग टूट नहीं जाता. टूट गया तो वो वेलोसिटी भी गया फिर. Right? Once again, minimum root 5 RG, root 2 RG, root 3 RG, root RG, root 5 RG. Something between root 5 RG and root 3 RG. अगर ये root 5 RG और ये root 3 RG तो ये बीच का कोई नंबर. अगर ये root 6 RG है तो ये ज्यादा हो सकता है. Yes or no? ये वेलोसिटी होगी. Now tension. 6 mg. Can I say minimum? Yes. 0, 3 mg. 6 mg. 0, 3 mg. Suppose 7 mg. Suppose. 4 mg. Very good. Very good. Suppose 8 mg. 2 mg. मतलब ये दोनों का डिफरेंस 6 mg है और ये दोनों का डिफरेंस 3 mg है. राइट? वापिस ये 6 mg है तो ये 0 है. ये 3 mg. ये 7 mg है तो ये 5 mg है तो नहीं चलेगा. मिनिमम 6 mg चाहिए था इधर. यस और नो? ये हो गया बेटा. चलो अभी काइनेटिक एनर्जी.
5/2 mRg, 3/2 mRg, 1/2 mRg, minimum. Therefore, potential energy 0. 2 mRg, 1 mRg. Potential पूछा ना बेटा मैंने. Potential. वापिस काइनेटिक 5/2 mRg, 3/2 mRg, 1/2 mRg, 3/2 mRg, 5/2 mRg, 3/2. Potential energy 0. Kinetic was 0 plus 5/2. Total energy. बराबर. Kinetic 3/2 mRg. Potential 3/2 plus 1. Okay. Kinetic potential total. That means total energy is conserved. It is same everywhere. पूरा का पूरा आर्टिकल समझा बेटा. अभी टोटल मेमोरी है. टोटल मेमोरी बिल्कुल बुक ओपन नहीं करोगे बिकॉज दिस इज द बेस्ट वे टू मेमोराइज वर्टिकल सर्कल. अभी जो मैंने सिखाया वो घर पे भी ऐसे ही प्रैक्टिस करने का. फॉर्मूला रट्टा मारोगे मरोगे, कसम से बोलता हूँ. फॉर्मूला रट्टा मारोगे तो इट विल नॉट हेल्प यू. Okay, now I am writing everything in one diagram and then I am deriving two main formulae. One for tension, other for velocity. अभी जो अपने पास फॉर्मूले थे, they were for equilibrium condition only. Means you cannot actually speaking apply them. You can apply them only when equilibrium condition is there. आने वाला 10 मिनट बुक ओपन नहीं करोगे. Check your memory. Okay. This is the reference line with respect to which angle is measured. And this is the reference line with respect to which height is measured. So this is the reference line for angle. And this is the reference line for height. Okay. We are marking 4 positions. 1, 2, 3 and 4. Am I right? अभी मैं टेंशन वेक्टर्स और वेट वेक्टर्स नहीं बताऊं. Right? One by one. This is A, this is B, this is C, this is D. Let us start with theta. Theta at A. 0. Theta at B. 180. Theta at C. 90. Theta at D. 200. Some value between 0 and 1. चलेगा? Okay. You also know that this is height. This is height. This one is height. Right? So what is the formula of height? L times 1 minus cos theta. So next answers are of height. Height at A. 0. Height at B. 2L. Height at C. R. Height at D. L times 1 minus cos theta. It is decided by theta. अगर theta suppose 60 degree है, then my answer is L into half. लेकिन अगर theta 120 degree है, then it will be 1 minus half. It will be 3/2L. Yes or no? अच्छे से समझा. My answer should be between 0 and 2 R. उसके बाद में we are talking about velocity at point A. अब तक मैंने velocity vectors बताया नहीं था क्योंकि ऑलरेडी मेरे डायग्राम में बहुत सारे वेक्टर्स थे. Right? This is velocity at C. This is velocity at B. And this is velocity at D. बराबर. So what is velocity at A? Is it more than or equal to root of 5 Rg? What is velocity at B? More than or equal to root of 1 Rg? What is velocity at C? More than or equal to root of 3 Rg? And what is velocity at D? This I am going to derive. मैंने जो फॉर्मूला लिखा था ना ये वाला, velocity at any point which is under root GL bracket 3 plus 2 cos theta. और दूसरा फॉर्मूला लिखा था टेंशन का. This is 3 mg bracket 1 plus cos theta. बेटा ये दो फॉर्मूला आप लोग सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन में यूज कर सकते हो. ओनली फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, नॉट अदरवाइज. नॉट अदरवाइज देन व्हाट? नॉट अदरवाइज देन व्हाट? दैट वी हैव टू टॉक अबाउट. तो ये फॉर्मूला होल्ड पे. चलो
tension at point A more than or equal to 6 mg. Tension at point B more than or equal to 0. Tension at point C more than equal to 3 mg. Tension at point D ये मुझे डिराइव करना है क्योंकि ये इक्विलिब्रियम के लिए था, राइट? नाउ काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए? Is it more than or equal to 5/2 mrg? Kinetic energy at point B more than or equal to half mrg. Kinetic energy at C more than or equal to 3/2 mrg. Kinetic energy at D, एक बार मेरे पास वेलोसिटी एट D आ गया और टेंशन एट D आ गया, मतलब मेरे पास काइनेटिक एनर्जी दिया. So this is still question mark. Potential energy. Potential energy at point A. Potential energy at A 0. Potential energy at B 2 mrg. इसमें कोई डाउट नहीं है, ऐसा नहीं है कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, वो 2 mrg है, राइट? पोटेंशियल एनर्जी एट सी, दिस इज mrg, इसलिए देखो मैं इधर ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिख रहा हूं, राइट? एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट डी? पोटेंशियल एनर्जी एट डी, सोचो, विल इट बी mg L times 1 minus cos theta? Yes or no? Because H is this. Finally, can I say total energy is 5/2 mrg everywhere. बराबर? तो अब तक मैंने जो सिखाया सब आ गया इसमें, अभी जो बाकी सिखाया वो भी आ गया. चेक. As we move from bottom to top, can I say height increases, angle increases, potential energy increases, speed decreases, tension decreases, kinetic energy increases, total energy is constant, right? Now new derivations. Now new last two derivations of this article. ध्यान से सुनो. That means now I am talking about this. Now I am talking about this. शुरू करूं? ध्यान से. Total energy will be 5/2 mrg because potential energy will adjust. Potential energy is dependent on theta. So when one kind of energy disappears, other kind of energy reappears. Or when one kind of energy decreases, other kind of energy increases. So that the sum total remains the same. अभी ध्यान से डायग्राम देखो, ध्यान से. ये मैंने ज्वाइन किया इसको. Tell me one by one. Who is this? Who is this? mg. Who is this? Tension at point D. Who is this? Therefore, who is this? Therefore, who is this? And who is this? मेरे लिए कौन इंपॉर्टेंट है? अच्छा, ओके, शुरू करो. नाउ पॉइंट नंबर 1. पहले मुझे वेलोसिटी डिराइव करना है. डू यू एग्री विथ मी? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh. मैंने बोला प्लस, लिखा माइनस. क्यों? What motion under gravity? When I am going from bottom to top, velocity कम. When I go from bottom to top, height बढ़ रहा है, लेकिन velocity कम. This is not motion under gravity. No, this is vertical circle. तो इधर मैंने बोलते वक्त प्लस बोला, लेकिन लिखते वक्त माइनस बोला. क्यों? समझा? Can I say therefore v square is u square minus 2g h is L times 1 minus cos theta whole only. तो बेटा मुझे वेलोसिटी का फॉर्मूला मिला, जनरल फॉर्मूला. जनरल इज इट u स्क्वायर माइनस 2gl ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा. मतलब ये हुआ कि ये फॉर्मूला आप तब यूज कर सकते हो जब आपके पास इक्विलिब्रियम वर्ड है, नहीं तो यूज नहीं कर सकते. समझा? ये रूट 5rg है, तो ही ये रूट 1rg और तो ही ये रूट 3rg. सपोज ये रूट ऑफ 5.1rg, तो इसको आप रूट ऑफ 1.1rg नहीं बोल सकते हो.
क्योंकि आपका स्टार्ट रूट ऑफ 5.1 है. अच्छा, कैन दिस बी रूट ऑफ 4.9? नो, क्योंकि मिनिमम रूट 5 आरजी होना चाहिए. अभी रूट 5 आरजी से ज्यादा हुआ तो कितना ज्यादा मुझे नहीं मालूम है ना. दैट इज व्हाई ये जनरल फॉर्मूला. समझा? ये फॉर्मूला आप कब यूज कर सकते हो? जब आपके पास थीटा एग्जैक्ट वैल्यूज है 0, 90, 180, नॉट अदरवाइज. ठीक है. अभी टेंशन, द सेकंड एंड द लास्ट डेरिवेशन ऑफ द डे. इक्वेशन कैसे लिखोगे बताओ? टेंशन एट पॉइंट डी माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू m vd स्क्वायर अपॉन r. Therefore, tension at point D is equal to m vd square upon r plus mg cos theta. तो बेटा ये वेलोसिटी एट पॉइंट D था ना, यही तो डिराइव किया था मैंने, राइट? इन प्लेस ऑफ vd square, can I write this? So what will I get? Tension at point D is m upon r. vd square की जगह पे आएगा u square minus 2gl bracket 1 minus cos theta bracket over plus mg cos theta. Yes or no? या तो मैं L को R बोलूंगा या तो मैं R को L बोलूंगा, बिकॉज आई नो R एंड L आर सेम. यस और नो? तो इसको मैं L बोलूं, चलेगा क्या? ओके, नाउ ओपन द ब्रैकेट इनसाइड. सो टेंशन एट पॉइंट D इज m by L. अंदर आएगा u स्क्वायर minus 2gl plus 2gl cos theta plus mg cos theta. Yes or no? That gives me m upon L. This is u square. अभी ये मैं m भी अंदर लेके जाता हूँ, right? If I take m by L inside, see what will I get? If I take m by L inside, will I get this as m u square upon L minus this is 2mg, बराबर? L cancel, plus 2mg cos theta plus mg cos theta. थोड़ा टाइम सेव करूं. 3mg cos theta, ये mg cos theta है. थोड़ा टाइम सेव करूं. लास्ट स्टेप, m कॉमन, अंदर आएगा u स्क्वायर अपॉन L माइनस 2 कॉमन, m कॉमन, g कॉमन, राइट? mg कॉमन इन फैक्ट. इज इट 2 minus 3 cos theta? अभी मैं m भी कॉमन ले रहा हूं और मुझे ये l भी कॉमन लेना है, तो ये l कॉमन लिया मैंने. माय फाइनल मोस्ट आंसर इज दिस, बिकॉज मुझे ये gl दिखना चाहिए. समझा कि वापिस बोल कि एक बार वापिस देखो, एकदम अच्छे से समझा? तो बेटा ये टेंशन का सबसे जनरल फॉर्मूला, टेंशन का सबसे जनरल फॉर्मूला ये दिखने में ये सिंपल दिखता है, बट नो, दिस इज द मेन फॉर्मूला. समझा कि वापिस बोलो? पूरे आर्टिकल में मैं सिर्फ और सिर्फ ये और ये मेमोराइज करने की परमिशन देता हूँ या तो एडवाइस देता हूँ, क्योंकि ये प्रूफ आप याद नहीं रखोगे चलेगा. ये प्रूफ आप याद नहीं रखोगे चलेगा. आपको सिर्फ ये और ये मेमोराइज करना. इज दैट क्लियर? बाकी ये कैसे मेमोराइज करने का वो तो मैंने सिखाया, घर पे इसको ऐसे ही प्रैक्टिस करने का. 7 things in your mind: theta, height, kinetic energy, potential energy, total energy, velocity and tension. 7 4 28 हो गया. This is 7. 35 हो गया. 36, 37. Now last 2 things. Tension at the highest point is lowest, and tension at the lowest point is highest. What is tension at the highest point? m square upon r minus s. And what is tension at the lowest point? m square upon r plus s. अगर मैंने वैल्यू पूछा तो ही 0 और 6 mg बोलने का, नहीं तो फॉर्मूला बोलने का. अगर मैं ये बोलता हूं कि व्हाट इज टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट, आप 0 नहीं बोलोगे, आप लोएस्ट बोलोगे. फिर मैं क्या बोलूंगा? इक्विलिब्रियम, तो आप 0 बोलोगे. जब मैं जनरल क्वेश्चन पूछता हूं आपको जनरल फॉर्मूला बोलना है. व्हाट इज टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट? m square upon r
minus mg. What is tension at the lowest point? What is tension का value at the highest point in equilibrium? 0. What is tension का value at the lowest point in equilibrium? क्या वो tension 7 mg हो सकता है? 5 mg हो सकता है? ऊपर क्या tension mg हो सकता है? क्या माइनस mg हो सकता है? इज दैट क्लियर? मतलब ये आर्टिकल में जब हम लोग टेंशन की बात करते हैं या तो वेलोसिटी की बात करते हैं, इट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड. जब हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड्स की बात करते थे, अनबैंक रोड की बात करते थे, तब दैट वाज द मैक्सिमम सेफ स्पीड. मतलब उसके बियॉन्ड नहीं जाना, यहाँ पे इसके बिलो नहीं जाना, अदरवाइज वर्टिकल सर्कल विल नॉट हैपन. इज दैट वेरी क्लियर? सुपर श्योर. अब बेटा आप अपने लिस्ट ऑफ फॉर्मूले पे आ जाओ. लिस्ट ऑफ फॉर्मूले पेज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 19. कंप्यूटराइज्ड नोट्स पेज 19. पेज 18 खाली फॉर्मूला 20 बाकी था, चेक करो. बाकी सब हो चुका था अपना, है ना. 21 भी हो चुका था अपना, कोनिकल पेंडुलम हो चुका था, खाली ये टेबल बाकी था. टिक करो, हो गया. अब आप हैंड रिटन पेजेस पे आ जाओ. पेज नंबर 1 2 3 4 5 6 7 वर डन. 8th and 9th डन टुडे. यू कैन चेक. मतलब बेटा बोर्ड एग्जाम के टाइम पे, JEE के टाइम पे, बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए नीट के टाइम पे, अगर वर्टिकल सर्कल 2 ही पेज में खत्म करना है, पेज 8 and 9 खत्म, उसमें सब आ गया. देखो पेज 9 देखो क्या टाइटल दिया है. टाइटल क्या दिया है? मतलब इसमें मेरा पूरा वर्टिकल सर्कल आ गया. अभी ध्यान से देखते जाओ. डू यू सी V हाइट थीटा एट ऑल द पोजीशंस? डू यू सी H का फॉर्मूला? आपको एकदम बॉटम पे एक बॉक्स दिख रहा है, एकदम बॉटम पे. इज इट दिस? ये बेटा सिर्फ इक्विलिब्रियम में यूज करने का, नहीं तो यूज नहीं करने का. अभी ये पोजीशन देखो, ये इधर मैंने ये 2 फॉर्मूले लिखे होंगे, चेक करो. ये मेन है. पेज 9 की बात कर रहा हूँ, पेज 9 की बात कर रहा हूँ. पेज 9 पे आपको V का फॉर्मूला ये दिख रहा है. पेज 9 पे पोजीशन D देखो, D पोजीशन D देखो, उधर V का फॉर्मूला ये दिख रहा है. ऑब्वियसली ये मोर देन और इक्वल टू होगा, बराबर. और टेंशन का फॉर्मूला ये दिख रहा है, तो ये जनरल फॉर्मूला हुआ, नो मिस्टेक. इज दैट क्लियर? ये सिर्फ इक्विलिब्रियम के लिए. ये इसके नीचे लिख के रखो. पेज नंबर 9 का बॉटम पे जो बॉक्स है ना, उधर लिख के रखो, ओनली फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन. अभी होमवर्क ध्यान से सुनो. whenever my lecture is announced, hand written pages, page 8 and page 9 3 times. उसका रीजन है, अभी आने वाले तीनों की तीनों असाइनमेंट्स इसके ऊपर है. अच्छा माइंड यू, ये चैप्टर HSC वाइज खत्म हुआ है, JEE वाइज अभी भी खत्म नहीं हुआ है. JEE वाइज यू हैव गॉट सिलिंड्रिकल ड्रम, बाइक इज गोइंग ऑन दैट. यू हैव गॉट कोनिकल फनेल, you have got hemispherical bowl, you have got convex flyover, you have concave bridge, many things are there. Is that clear? So, homework for you, page 8, page 9, 3 times. Most important, छापना मत. हाँ, देख देख के कॉपी मार के 3 बार सबमिट किया, यूजलेस. मेरे नेक्स्ट लेक्चर में मैं MCQ शुरू करने वाला हूँ. नेक्स्ट लेक्चर में 99% we will finish असाइनमेंट 4. असाइनमेंट 4 का टाइटल चेक करो. असाइनमेंट 4 का टाइटल चेक करो. इज इट वर्टिकल सर्कल? होमवर्क बुक में कैसे करेगा? 3 बार. क्या नॉनसेंस जैसा क्वेश्चन है. लूज शीट्स पे ऑब्वियसली. मैंने MCQ होमवर्क दिए क्या? थियरी पार्ट होमवर्क दिया. तो ये बुक में कौन से कोने में तू 3 बार करेगा? ये होमवर्क वाली नोटबुक बोलना भी. हाँ तो ठीक है. प्लीज स्टॉप हियर फॉर द डे.